So having understanding this Satya work, have that confidence. You may still have that fear. No, it's very, very good to talk here, very nice to hear this speech, but practically not possible. Correct? So if you have that, please come that, I will challenge you that after BSc, to lie, you find it very difficult. Because there is no necessity. See, why you are lying? Right? Because you are feeling that I'm going to do something. When you see that by lying, I am losing 10 times than being in the truth. So why you will go to lie? You will say that, okay, I will have this prasad. Being in truth, I may get, one punishment. That's fine. It is far better. So you will learn this. The more of the profit, there is no loss. Because this is what the Rishi technology is given to us, and we need to practice this. So really want to have the courage in your life, stand up and say that, I'm going to stand for the Satya. Make your life more beautiful, make your home more beautiful. This is how to give the blessings to your children and grandchildren. You doing this vrat is very important. This is a vrat, is the highest vrat. You may go to the temple, you may do this Gayatri Japa, or you may do any sadhana, it is all blessed. This is the highest one which you want to do it, you will get immediate results and your blessings will be more. So you can make your whole family, right, in a very happy family life, and also that everyone what sankalpa they want to do it in their lifetime, so they can achieve it in a more easier way. So don't struggle. You have got so much of insecurity, working, so much of tired of it. So being that, we all had that. We used to sleep around 2:30 in the morning. 6:30 we used to get up, and continuously we used to be there. No one used to feel it, sleepy over there. As last night also we had, and day before night also we slept around 3 o'clock in the morning in the open air on the hill. But we got up early in the morning, again we started this. But still we are all energetic. How? Because of this Satya, we are enjoying. But Asatya makes you very dull, very lethargy, you feel damn sleepy. So if you want to experiment this, go home, keep lying in, so then you feel very dull. Tamasic sthiti. So if you want to get into the Rajasic, only the Satya will go to help you. So nobody will go can help you. Only yourself. You have to help yourself by you living in Satya. यदि आप BSc करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपको असत्य में रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असत्य से आपको इतना नुकसान होता है। आप देखिए कि सत्य में रहने के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो नेचुरली आपको असत्य में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यदि सत्य में रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी शक्तियाँ कितनी बढ़ती जा रही है, आपकी एनर्जी लेवल कितनी बढ़ती है। अभी हम 4-7 दिनों से मैं BSc 1 और BSc 2 में इधर था, तो हर रोज़ हम बहुत कम समय के लिए सोते थे। कभी हम हिल पे जाके सोते थे, इधर क्या, लेकिन इतना सिर्फ 4-5 घंटों की नींद भी काफ़ी थी, और फिर भी इतने सब लोग आए हैं और वो इधर आपके साथ में शेयरिंग करें, उसके बाद भी इधर ट्रैवलिंग करके आए हैं। ये सत्य की शक्ति है जो आपकी जो स्फूर्ति है, जो आपकी शक्ति है, वो बढ़ाती है। तो अभी हम और कुछ लोगों का शेयरिंग कीजिए। आकाश अभी जो BSc से आए हैं उनमें से और कोई है पीछे? आकाश और आप पढ़ना चाहते हैं? जय गुरुदेव, मेरा नाम अनिल मनुजा है। मैंने अभी BSc 1 किया, और मुझे एक्चुअली डिफरेंस सत्य और ट्रुथ दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हम लोग समझते हैं ट्रुथ, और एक्चुअली वो ट्रुथ नहीं है, और एक्चुअल सत्य नारायण का व्रत कैसे रखते हैं हम लोग, और एक्चुअल मीनिंग क्या है,
वो मैंने BST1 में समझा, और जब मैंने उसको अपनाने की कोशिश किया तो मुझे बहुत अंदर से पीस मिलने का आने लगा, और बहुत एक अंदर से एक ब्लिसफुल फीलिंग सा लग रहा है, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, बहुत आनंद से महसूस हो रहा है। थैंक यू। वंडरफुल, जय गुरु। अब आपका नाम बताइए। जय गुरुदेव। BST1 मैंने किया है, मैंने BST आपका नाम बताइए। आप मेरा नाम आकाश बाबा है, मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली से मैं BST1 करने आया था। मैंने BST1 करा, और जो प्रेशर था मेरे दिमाग में, I mean that was like I was carrying that pressure from the last like many years. मुझे रिलीज हो गया वो 3-4 दिन में जो मैंने करा, उसका मैं इतना लाइट फील कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं BST2 नहीं करा, अभी BST2 नहीं करा, मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है। सतीश जी से बोला कि जब से आपने मतलब मैं वहाँ से आया हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा वहाँ चले जाऊँ, और अब तो वो अक्टूबर में ही होगा, तो आई प्रेफर कि मैं अक्टूबर में ही आऊँ और मैं BST2 ज़रूर करूँ। मगर जिसने भी नहीं करा और जो भी SSY में है, प्लीज़ करिए। मैं आपको मुंह से बता नहीं सकता कि वो कितना अच्छा है, आप एक बार करिए, आपको अपने आप पता लगेगा वो कितना अच्छा है। Regarding this Satya, when you lived in Satya, what happened, and before that, you having that, were you able to live in Satya? Do you have, what is the difference in that? Can you share? Because they may be having the fear that we cannot live in truth. मैं किसी और के बारे में बात नहीं करूँगा, I would prefer talking about me. अभी झूठ मैं पहले बहुत बोलता था, इनफैक्ट मैं अभी भी मतलब हाँ हूँ, मगर जब से ये पता लगा है कि सत्य क्या है, क्योंकि पहले लोग बोलते थे बीन ट्रूथ, तो ट्राई मारता था क्या बीन ट्रूथ, ट्राई मारता था और फिर लगता था नहीं प्रॉब्लम है, फिर नहीं करता था। अभी BST1 के बाद मैं घर जा रहा था, मेरी दीदी है यहाँ पे, मैं दीदी के साथ ही रह रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी मेरा मन कर रहा है उसको मैं कुछ भी गलत बोलने का तो मैं बोल देता हूँ, और मैं इतना लाइट फील करता हूँ, मेरे को इतना मजा आता है। अभी रात को मैं मेरे ख्याल से 1 बजे करीब सोया और 3 बजे उठ गया। मैं इतना लाइट फील कर रहा था उस टाइम, और शायद आज भी, कि मैं थक नहीं पा रहा हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रही कि मेरी एनर्जी इतनी आ कहाँ से गई है। मुझे चैनलाइज करने में थोड़ी मतलब एक सही वे, अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मतलब BST करने के बाद आ गई है, और मैं डेस्परेट हूँ कि BST2 कब स्टार्ट होगा और कब मैं वो करूँगा। When you stood for the Satya in BST, so was it easy or was it difficult? आप मुझे एक बात बताइए, आपको सीधा चलना है, अभी अगर आप सीधा ऐसे चलेंगे तो वो ज़्यादा आसान है, या फिर आप ऐसे करके चलेंगे वो ज़्यादा आसान है? So simple. वंडरफुल। मेरा नाम विलास ठाकुर है, मैं पूना से आया हूँ, और मैं स्पेशली BST करने के लिए देवी आश्रम गया था। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जो मेरे 20 सालों से मैं जो झूठ बोल रहा था सबसे, वो झूठ मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाता था, वो शेयरिंग मैंने वहाँ सबके सामने किया, और वो करेज मुझे BST1 से मिला। और BST2 में मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाउ टू मेंटेन आवर रिलेशनशिप, लव क्या होता है, धर्म क्या होता है, ये सब हमने BST2 में सीखा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर हमें बोलते कि आपने जो सीखा है वो अपने शब्द से एक्सप्रेस करो, पर आज तक हमने जो सीखा था वो हमारे सर लोग एग्जाम लेके हमारे टेस्ट लेते थे और हमें बता देते थे कि यार तुमने इतना सीखा है और इतना नहीं सीखा है। पर अभी सर हमारे ऊपर ये इतना बड़ा क्वेश्चन डाल देते हैं ये सब करने के बाद में कि आप ही बताओ आपने क्या सीखा है, तो ये तय करना बहुत मुश्किल होता है। पर हमने ये ज़रूर सीखा है कि अंदर कैसे झांक के देखना है, और ये हमें BST1 से मिला है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर और कुछ डीप लेवल में जाना है और कुछ सीखना है, कुछ पाना है SSY से, तो आप जरूर BST कीजिए। धन्यवाद। ओके, और कोई BST की बात आप शेयर करेंगे करना? Anybody else want to share? मुकेश, you want to share?
So this is all about, that how simple, they are making their life so beautiful. Just by Satya. So make your life also more beautiful with Satya. जय गुरुदेव। सत्य में रहने से अंदर बहुत ही हल्कापन महसूस होता है, लाइक यू फील फ्रीडम एंड दैट रिफ्लेक्ट आउटसाइड ऑल्सो। तो बाहर का जो बंधन है वो महसूस नहीं होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अनुभव हुआ है कि सत्य में रहने से शब्दों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड सो इट्स अ मैजिक, इट्स सो पावरफुल, लाइक विदाउट वर्ड्स पीपल गेट एंड Are you finding very difficult? Are you finding very difficult to be in Satya or very easy being in Satya? After doing BST1, it's become very easy, and it's actually very powerful, and डर नहीं रहता है वो, it's fearless. So how do you feel now? So you like to I continue? think that I'm doing from my heart. No. Do you like to continue with Asatya, same old or Satya? Huh? Anybody is enforcing And still, it's not 100%. Sometimes I like. Yeah. Anybody is enforcing For our comfort. हो जाता है. Anybody is enforcing on you to stand on Satya? No. By your own wish that you want to stand in Satya and you are doing it. And you are finding a result. Yeah. So you are very happy in that. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Some tradition, Ah. they say that ahimsa is more important. Sorry? Ahimsa. Uh-huh. तो उनका थोड़ा comparison करेंगे। Yeah, this Satya, that is what Mahatma Gandhi did. Here is this Satya with Ahimsa. Just by Satya, it doesn't work. So Ahimsa is also very essential. सत्य के साथ अहिंसा भी उतना ही जरूरत है। अभी एक कम समय में ये कैसे अहिंसा क्या है, सत्य एक्चुअली क्या है, हम इतना ही जानते हैं कि सच बोलना, झूठ बोलना, इतना ही सत्य के बारे में हम जानते हैं। सत्य की जो परिभाषा है, सत्य का डेफिनेशन क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। जब आप BST आएंगे तो आपको ये बहुत गहराई में आपको पता चलता है कि सत्य का डेफिनेशन क्या है, और आपके जो फंडास हैं वो इतना क्लियर हो जाता है कि आपको एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आपका जीवन भी एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और एक सबसे बड़ा और बढ़िया ऐसा जो बेनिफिट है वो है संकल्प सिद्धि। जब आप सत्य में रहते हैं तो एक संकल्प सिद्धि, ये सिद्धि प्राप्त होती है जिसके जरिए आप कुछ भी पा सकते हैं। मैंने जो भी मेरी BST की है और उसमें जो भी संकल्प मैंने किए हैं वो मेरे सभी संकल्प मेरे पूरे हुए हैं आज। तो ये एक शक्ति है सत्य की और सत्यनारायण के व्रत की। मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। BST करने के बाद इनफैक्ट आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक आपका हार्ट, आप दिल से चाहें कि वो चीज़ करें, और एक आपका दिमाग। कोई भी चीज़ को टारगेट करने के लिए दोनों चीज़ों का एफिशिएंसी और जो बंडल पैकेज है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक चीज़ भी मिसिंग है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा, या फिर बहाना ये होता है यार दिमाग काम नहीं कर रहा। और BST करने के बाद आपका मन भी करेगा और दिमाग भी काम करेगा, तो यू हिट द टारगेट। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रिया है और बहुत साइंटिफिक शास्त्र शुद्ध तरीके से हम हमारे गुरुजी जो बहुत वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये बहुत ही आहिस्ता से बहुत 4 दिनों में हम BST1 में सत्य की परिभाषा जानते हैं। सत्य क्या है, कैसे रहना, और उससे इतना हल्कापन महसूस होता है। आई एम वेरी श्योर कि जो लोग अभी आए हैं इस BST करके वो वही अनुभव कर रहे हैं कि जो मैंने BST में किया था, वो हल्कापन, जैसे पंछी की तरह उड़ना। ये सुनो, जो भी BST1 करके आए हैं, मैं बोल रहा हूँ सही है। जो मैंने जब भी BST1 किया था फरवरी 95 में, तो जो
पूना में हमने किया था, उधर से इधर आने का जो अनुभव था, ऐसे लग रहा था उड़ रहा हो। मैं इतना हल्का महसूस कभी नहीं किया। पंछी की तरह हम हल्के होके कैसे उड़ सकते हैं, जस्ट आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू, और शब्द नहीं है मेरे पास। वो एनर्जी में मैं ऐसा था कि मैं 4 दिन मेरे घर से बाहर नहीं निकला। ये जो एनर्जी है, ये जो अनुभव है, इससे मैं और खोना नहीं चाहता था। इतना ये बहुत ही अलौकिक, एक बहुत ही अविस्मरणीय ऐसा वो अनुभव था। और ये BST जो है एक बार करने से नहीं, ये एक साधना है, ये एक व्रत है और ये एक कल्चर है। जैसे SSY ये एक कोर्स नहीं है, ये कल्चर है जिसमें आप आते हैं, सिर्फ आते हैं जाने के लिए नहीं, लेकिन आते हैं रहने के लिए। कल्चर वो होता है जिसमें आप आते हैं और रहते हैं। और इसीलिए ये सब लोग हर बुधवार इधर जो एडवांस SSY ये होता है, इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं। कोई 3-3 घंटे का ट्रैवलिंग करके इधर आते हैं, थाना से आते हैं, मुलुंड से आते हैं, देहरी, कल्याण, उधर से भी लोग इधर आते हैं। तो यही है ये व्रत में, ये कल्चर में रहना। जैसे SSY ये एक व्रत है, वैसे ही BST ये भी एक व्रत है और BST ये भी एक कल्चर है। तो उसको बनाए रखने के लिए जिन्होंने भी BST एक बार किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि एक बार करने से सब कुछ मिलता है। वापस आप सेकंड बार आइए, थर्ड बार आइए, क्योंकि ये अंदर हमारे अंदर जाना है। हम वापस जाते हैं, कुछ दिनों के लिए बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं, वापस वो एनर्जी डाउन होता है। जैसे बोलते कि हम वापस थोड़ा सा असत्य या सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। वापस वो एनर्जी, जैसे आप आपका मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ही आपको SSY के बाद खुद के चार्जिंग के लिए या एडवांस SSY है, उसके साथ में और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। रिट्रीट आप करेंगे, साइलेंस कैंप 1, साइलेंस कैंप 2, BST 1, BST 2, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम और आपके साथ रहेंगे, जिसका आधार से आप ये संस्कृति के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो जो भी BST के हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे नहीं कि सब कुछ, अभी आपने ये देखा होगा कि जो सेकंड टाइम BST कर रहे थे, तो ये याद नहीं आ रहा है। आप SSY भी जो लोगों ने एक बार किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वापस आप उसको रिपीट करिए। आपको कोई चीज़ तो है ही नहीं, वापस आप आइए। अभी जो क्लास चल रहा है इधर, अश्विनी माँ ले रहे हैं, वो क्लास में आप आइए वापस। आप जब भी बैठेंगे आपको ये कभी मैंने सुना ही नहीं है। आई एम 100%, क्योंकि हम आज क्लास हमारा इतना फास्ट हो गया है कि वो हम इतना सब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। आपका जो भी 5%, 10%, 15% एब्जॉर्प्शन होता है, उससे ही आपको इतने रिजल्ट्स मिलते हैं कि आपको आज वाह। लेकिन ये वाह जो है वो उतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो जिन्होंने भी किया है प्लीज़ आते रहिए, सिर्फ बुधवार नहीं, लेकिन आप क्लास में भी वॉलंटियरिंग करिए, ये कल्चर के साथ जुड़े रहिए। BST क्या है, BST 12 क्या है, BST 2 के लिए आइए, वापस BST 1 आइए, नेक्स्ट टाइम आइए। जिन्होंने BST 1, 2 किया है, वापस नेक्स्ट टाइम BST 1 और 2 होने वाला है। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये मैंने कुछ सुना ही नहीं था। 100% कि ये कल्चर ही ऐसा है, क्योंकि ये कल्चर है, क्योंकि आपका जीवन जैसे आगे आगे जाता है, टर्न करता है, उसके हिसाब से आपको वापस नया अंदाज की, नया तरीके से वापस आपको कुछ इन्फ्लुएंस की ज़रूरत होती है। और इसलिए ये आपको एक कल्चर के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी जो भी SSY वापस नेक्स्ट टाइम जो अप्रैल महीने में कौन सी तारीख है अभी इसमें लिखी नहीं है, नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं। आई एम वेरी श्योर यू हैव एंजॉय। आपने आज बहुत कुछ सीख लिया है और आप ये जीवन में ज़रूर उतारेंगे। हर बुधवार हम मिलते हैं, तो नेक्स्ट बुधवार को भी एक जो टॉपिक है वो है या अब क्योंकि कुछ पूछना है। Sir, how do you keep your mind, intelligence, nature and art together? वापस बोलिए। Sir, how do you keep your mind, your intelligence, your nature and art together? He said no मन और दिमाग. How do you bring all these four together? Yeah. मुझे आप यदि बोलेंगे तो डू BST। अभी वो बता रहे, मुझे बता रहे कि वो बैठे बैठे बता रहे डू जस्ट BST। Anyways, but so Anyway, so
I'll give you this sample one. You may say that if you have a heart problem, the doctor says that bypass surgery to be done. If you ask that how will you do that, so you cannot open the heart and show you directly. So it should be done in the open bed. But I'll give you some tips that like I appreciate that you've got you thought about this, right? But what you need to do it is that function your heart. So once you start functioning your heart, all other things get into the alignment by itself. You don't have to put everything, controlling your mind, controlling your thoughts, controlling your intelligence. So nothing to be done over there. So you start looking into that, like your functioning of your heart. The BST is nothing but the functioning of your heart, right? So that is what it is. What do you mean by heart? It is only the prema. Once you increase the prema within yourself, your godliness within yourself, so a lot of power will be there. Automatically everything gets aligned by itself. तो नेक्स्ट जो BST होगा वो मोस्टली अक्टूबर में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके डेट्स आप इधर हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पता चलेगी। ये हफ्ते में और जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मार्च 17 और 18 को हमने एक श्री विद्या वर्कशॉप रखा है हमारे देवी आश्रम में। श्री प्रेम निर्मल जी ये एक ऐसी हस्ती है जो एक बहुत साइंटिस्ट है और वो हर एक चीज़ को शास्त्र के आधार पर हमें बहुत आगे बताते हैं और वो एस्ट्रल ट्रैवल करके हमारे लिए तैयार किया है। वो हम ऑडियो वीडियो विजुअल प्रेजेंटेशन आपको नेक्स्ट बुधवार को मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स हम हर बुधवार को आपके साथ आपकी सेवा में लेते आएंगे। और ये बुधवार की जो प्रोग्राम्स होते हैं वो SSY किए हो या नहीं किए हो हर कोई ये अटेंड कर सकता है। आप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आ सकते हैं। सबके लिए मुफ्त में अन्न प्रसाद और ये सब होता रहता है। लेकिन ऑफकोर्स आप ये जो सेवा है ये इतने लोगों के लिए हमारी चलती है, उसके लिए जो भी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो उधर बाहर एक आपके लिए कंट्रीब्यूशन का बॉक्स रखा है। आप यदि चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो ऑलवेज एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है। सिर्फ हम लेने से यदि हम देते नहीं हैं तो हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। हम इतने दिनों से हम कुछ नहीं रखते थे, एक दक्षिणा पात्र नहीं रखते थे, लेकिन अभी से हमने ये नया प्रोविजन रखा है। उसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है। आप अपनी गुप्त दक्षिणा जो है उसमें रख सकते हैं। 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, आपकी जो भी दिल से आप रखना चाहते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। जय गुरुदेव। ओके, हम अभी प्रार्थना करेंगे और उसके पहले मैं दोनों को भी अभिवादन करने के आकाश को रिक्वेस्ट करता हूँ। सतीश जी को पुष्पगुच्छों से और मीना बिंदल जी सतीश जी उर्वशी माँ जी को हमारी तरफ से छोटा सा आप कुछ so much. जय गुरुदेव। Nothing to say. You have so many things have been told to my everybody, and it was a surprise for me to be in that. I came for Guruji's Aradhana. Every year I come. I was surprised. I didn't have anybody from Bombay coming except the participants of BST. So usually we used to have, and I missed many of the people from Bombay. Every year I don't know whether you people know about it. March, second Sunday of March is Aradhana of Guruji, Guru Bhagavan Vishwesvaraya. We celebrate it, and especially for that I come from Bangalore. Every year I come, and just remember it, second Sunday of March, every year.
So it will be celebrated in Dehri Ashram. We are having the only one Vrindavan of our Bhagwan Vishweshwaraya, that is in Bombay Ashram, Dehri Ashram. So for that puja Aradhana we come from Bangalore, and I expect many people from Bombay, but I was very much disappointed this year, and especially I always used to have my Dr. Urvashi Amma with me always, and this time she also is missed. And she was also wanting to know when it is. She has forgotten about the second Sunday. So anyway, it was celebrated very nicely. We had the BST people and who gave, I mean, it was very, very good. And unfortunately or fortunately, Gopalji who was doing the puja and all, who was conducting the puja, he used to come with me. That is our Bhagwan Vishweshwaraya's disciple, who served Bhagwan Vishweshwaraya for about 11 years. He used to be with me always. This year he couldn't come. And it so happened the people from the Kalyan people and Bombay people, they were able to manage the puja, everything. And I just observed how it will be done, because we used to be in our style, it used to be in our style, but this year it has been in the Maharashtrian style. And it was very good, I enjoyed it. And afterwards I came to know that BST 2 was being conducted. I think BST 1 was by Guruji in 1995. So I attended the only BST conducted by Guruji in 1995, as he told. Afterwards I could not attend any BSTs, and I knew that Satiji was going on conducting, but I didn't have any opportunity to be in the BST. Nowadays Guruji is not conducting, but giving directions to Satiji, what to do, how to conduct, what to do and everything. So this was a very good opportunity for me to be in BST 2. And I didn't know that there was a BST 2 going on. It was going on, but I didn't know how it will be and what subjects are being taught there. And it was a very good class to me also. And I enjoyed it, and I remembered the old BSTs, and it was a good, when these people were explaining to you about the BST, I wish all of you will take BST and be in Satyavrata. And Guruji Satyavrata is very powerful. So please do it. And everybody, Satiji was telling all your friends are explaining their experiences. So very great experience you will have. And that is all. हमारे गुरुजी के जो गुरु हैं भगवान विश्वेश्वरैया, उनका आराधना दिन, उनका 10th एनिवर्सरी जो है वो मार्च महीने में आता है। तो उसका जो सेकंड संडे को मार्च महीने में सेकंड संडे जो होता है वो हमारे देहरी आश्रम में उनका जो समाधि है उधर सेलिब्रेशन होता है। और उसके हर साल हमेशा के लिए हर साल में होता है। और उसके लिए खास अम्मा जी बेंगलोर से इधर आते हैं। मैं ये समय हम लोगों को ये कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बहुत सारे प्रोग्राम्स में वो अनाउंसमेंट्स करना रह गया। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अम्मा जी कि नेक्स्ट टाइम पूरा 100 लोग होंगे। नेक्स्ट ईयर देयर विल बी 100 पीपल इन द नेक्स्ट ईयर देयर विल बी 100 पीपल। नेक्स्ट टाइम आप सभी लोग देहरी आश्रम में रहेंगे और हम आराधना दिन बहुत पावरफुली बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उस समय भी हम ऐसे कुछ करेंगे कि BST 1 और BST 2 उसी समय हो, सो दैट दोनों भी प्रोग्राम्स का बेनिफिट हम सभी ले सकते हैं। आराधना दिन भी होना और महाशिवरात्रि के दिन हमारा BST चालू हो गया, आराधना दिन उसमें था। ये बहुत ही अच्छे मुहूर्त ये BST के लिए प्राप्त हुए थे। तो हम सभी बहुत ही कृतज्ञ हैं, दोनों का भी आज हमें सहवास मिला है। बट ये आज जो भी हमने सीखा, यदि उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जस्ट आप देखिए कि आज आपने जो भी सीखा है आज से ही नहीं, अभी से इसको अपने जीवन में उतारना शुरू करिए।
ओके, अभी हम प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करके बैठेंगे। उसके बाद आप आंखें बंद करके बैठेंगे, हमारे वॉलंटियर्स आपको जैसे बताएंगे, फिर आप लाइन में आके स्लोली पूरे सेंटरफुलनेस के साथ आशीर्वाद और जो प्रसाद है सतीश जी से और अम्मा जी से लेंगे। ओके, लेडीज जो है वो सतीश जी से लेंगे, जेंट्स जो है वो अम्मा जी के से लेंगे, और फिर पीछे के दरवाजे से बाहर निकलेंगे। इधर का दरवाजा लॉक कर दीजिए। उर्वशी माँ और मीना जी आप पीछे उनको सतीश जी को और अम्मा जी को मदद करेंगे, और फिर आप प्रसाद लेके पीछे जाएंगे। प्रार्थना होने के बाद आप बैठे ही रहेंगे, आंखें बंद करके, आंखें नहीं खोलेंगे, और जैसे हमारे वॉलंटियर्स आपके पास आते हैं तो आपको बताएंगे, फिर आप एक एक आके प्रसाद लेके वापस जाएंगे। जी का जो तस्वीर हमारे गुरु जी के गुरु है भगवान विश्वेश्वरैया जी, इनकी तस्वीर रखी है, तो उधर आप करके फिर आप पीछे के दरवाजे से आप बाहर जाएं। उनकी इच्छा है कि इधर आप पाद नमस्कार नहीं करेंगे। ओके, आप सिर्फ इधर प्रसाद लेंगे और फिर आप उधर जाके नमस्कार करेंगे, और फिर पीछे के दरवाजे से, क्योंकि जो आएंगे वो सेंट्रल लाइन से इधर से आएंगे। बस आंखें बंद करके बैठिए, जब तक हम आपको सूचना नहीं देंगे तब तक आप आपकी आंखें बंद ही रखेंगे। इसके बाद आपको आंखें खोलने की सूचना मिलने तक या वॉलंटियर्स आपको सूचना निर्देश करने तक आप आंखें खोल के बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए। Please close your eyes। जो भी हमने आज सीखा है उसके साथ रहिए। ये संकल्प करिए कि आज से हम पूरे सत्य में रहेंगे, सत्य की शक्ति का अनुभव करेंगे। ये मन में प्रण और संकल्प करिए कि आने वाली BST में जरूर हम हिस्सा लेंगे और अपनी शक्ति को और बढ़ाएंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ॐ श्री अन्नपूर्णाय नमः। ॐ श्री अन्नपूर्णाय नमः। ॐ श्री अन्नपूर्णाय नमः। आंखें बंद करके बैठिए।